Good morning, everyone. This is Sunny Kumar Gupta from Student Guideline, and today we have discussed about our chapter integer, and that's a part 4 for 6th class and 7th class students. And today's our topic is properties of multiplication. Properties of multiplication ऑन इंटीजर, यानी इंटीजर पे हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक रहेगा. सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, फर्स्टली आई वांट टू से अगेन, माय डियर स्टूडेंट्स, you start your complete notebook. If you want to progress in your study, then start your preparation at home. If you not prepare, then you go very back, because due to COVID-19, you also know, in so far days, I think in that whole year 2020 is very bad season for students and education. So I say again and again, you start your preparation at home with the help of our video. If you have any problem, then you also write the comment with the help of YouTube channel, with the help of Telegram, with the help of my WhatsApp number. If you want to say anything. Okay, so let us start our topic. Firstly, you pause the video or take a screenshot of write on the board what topic is going on in that. properties of multiplication on integer, यानी हम मल्टीप्लिकेशन के इंटीजर पे जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अंडर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसे हम पढ़ेंगे, उसको आप पहले नोट करेंगे. Okay, so let us start our first topic, properties of multiplication on integer. That's the first topic is Clauser property for multiplication. My dear students, you also know in properties of addition, properties of multiplication, subtraction and division also you read that topic. That's a common topic is Clauser property. That's only different for Clauser property of addition, Clauser property of subtraction, Clauser property of multiplication and division. यानी आपको ये टॉपिक्स हर पार्ट में पढ़ना है, और 6th क्लास में आपको इसे होल नंबर में भी पढ़ना है और उसके बाद इंटीजर में भी पढ़ना है. तो यदि आप 6th क्लास का होल नंबर का पार्ट अगर अच्छा से देख लेते हैं तो आपको 7th क्लास का जो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, यानी कि इंटीजर जो है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता. इफ यू वांट टू गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड टेक अ लिंक ऑफ होल नंबर of 6th class, okay, then you have no any problem for in that period. But in my side, in that class integer also you have no any problem with the help of my videos. Okay, so let us start our first topic is Clauser property for multiplication. यानी इसमें पढ़ेंगे क्या, if a and b is a integer, then you also multiply, then you get integer. Is that clear? So first start, it means a and b, ये और b अगर दिया रहे तो दो मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आता है. तो चेक करते हैं एक बार, यानी 8 को a मानते हैं और b को 4 मानते हैं. जैसे 8 और 4, तो 8 4 जा, 8 को 4 से मल्टीपल करेंगे, 8 4 जा 32. ओके, और एक से एग्जांपल में यहाँ पे दिया 8 मल्टीपल ऑफ 5. इट मींस a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू a इक्वल टू 8 and b इक्वल टू 5. इज दैट a इंटू b इक्वल टू 40. 40 इज अ इंटीजर, यानी 40 जो है यहाँ पे क्या है, इंटीजर का वर्क करता है. इज दैट क्लियर? एंड आवर सेकंड टॉपिक इज कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ में क्या पढ़ेंगे, उसमें कि जब भी आपको a और b, if integer a and b is available, then we have multiple a into b या और b into a, is that equal, यानी कि a और b से मल्टीपल करें या b को a से मल्टीपल करें, दोनों का आपका आंसर जो होगा इक्वल आएगा. वो कैसे, एग्जांपल देखते हैं आपको. a into b and b into a, both are equal. How? That's a is equal to 8 and b is equal to 4. a को 8 मानते हैं और b को 4 मानते हैं,
तो मल्टीपल करेंगे a को b से 32 आता है। इज दैट क्लियर? और फिर वही b को a से जब मल्टीपल करते हैं तभी आपको क्या आता है, तो b इक्वल टू 4 और a इक्वल टू 8 इक्वल टू 32 आंसर। यानी यहाँ पे क्या लिखा था, यदि a और b दो इंटीजर है उसको मल्टीपल करेंगे तो हमेशा आंसर उसका इक्वल आता है। इज दैट क्लियर? और थर्ड टॉपिक इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आपको इसके पहले वाला में भी बताए थे, यानी कि जब प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर पढ़ रहे थे तो उसमें आपको क्या मिला था, एसोसिएटिव लॉ नॉट मिला था, यानी उसमें नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन इसमें एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो डिफाइंड करता है। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? इट मींस नाउ फॉर एनी इंटीजर a एंड b, यदि कोई 3 इंटीजर्स दिए रहे, यानी a b और c इंटीजर्स दिए रहे, तो उसका जो फॉर्मेट फॉलो करता है वो किस पे, जैसे a इंटू बी इंटू सी करते हैं, यानी a इंटू को स्टैंडर्ड एंड इंटू सी, या a इंटू बी इंटू सी करते हैं को स्टैंडर्ड, तभी आपका जो आंसर होता है वो सेम आता है। बट हाउ इज बी पॉसिबल? इट मींस यू आल्सो नो इफ a b एंड c, दैट्स a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर? तो a b और c के वैल्यू को पुट करेंगे, a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 4। यहां करेंगे 8 2 जा 16, 8 2 जा, आपको इसको जब इससे करेंगे तो 16 हुआ, और 16 4 जा क्या होता है, 64 होता है, 16 4 जा 64। इज दैट क्लियर? और सेकेंड पार्ट में जाते हैं, आपको a इक्वल टू 8, इज दैट क्लियर, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 4, यानी जब इसको हम पहले इसको करेंगे ये 4 हुआ, सॉरी 4 2 जा 8 एंड 8 8 जा 64, यानी कि दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। वो कैसे? तो यहाँ पे फॉर्मेट था आपको a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू को स्टैंडर्ड b इंटू सी, बोथ आर इक्वल, सो दैट्स गुड। इट मींस यू आल्सो फॉलो दिस वे, यानी जब भी 3 भी इंटीजर्स दिए रहे तभी आपका आंसर जो आएगा वो इक्वल आता है। एंड लास्ट टॉपिक देखते हैं इसमें, सेकेंड टॉपिक इसमें, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इट मींस आपको जब इंटीजर के अंदर मल्टीप्लीकेशन का जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें एडिशन के साथ भी कुछ टर्म्स होता है, कंडीशंस होता है, और वो भी इस पे फॉलो करता है जो कि इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर जैसे देखते हैं इसका, फॉर एनी इंटीजर, यानी कोई भी जो इंटीजर है जिसमें 3 a b c इंटीजर दिया रहा है, तो उसको फॉलो करेंगे इस रूल पे, तभी उसका आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा। इज दैट क्लियर? यानी a इंटू बी प्लस सी को स्टैंडर्ड इक्वल टू b इंटू सी प्लस a इंटू सी इज द इक्वल। इसको इसका एग्जांपल हम यहाँ पे पहले बोर्ड पे बताते हैं आपको, फिर आपको, तब तक फिलहाल आप इसे नोट कीजिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एंड दैट्स थर्ड। ये वाला जो था आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसमें हम क्या पढ़े थे, जब a b और c दिया है, a b और c दिया रहा है, नंबर्स इंटीजर्स दिए रहे हैं, तो उसका जो वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं फिर भी उसका आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 8। इज दैट क्लियर? तो a इक्वल टू क्या है यहाँ पे, a इक्वल टू 5, ओके, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 8। इज दैट क्लियर? और फिर इक्वल टू इसमें क्या है, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, देन c इक्वल टू, सॉरी, देन a प्लस c, a इक्वल टू 5 प्लस a इक्वल टू a इंटू सी, c का वैल्यू आपको यहाँ पे 8 मिला। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं आपको, तो यहाँ पे ये आपको आ गया आंसर जो है 5 मल्टीप्लाई 8 6 जा 48। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखते हैं आपको 5 6 जा 30 प्लस 8 5 जा, ओके, तो यहाँ पे क्या था, जैसे ये 5 हो गया, 8 और 6 क्या होता है, 14 होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और फिर यहाँ पे 5 6 जा 30 और प्लस है, फिर 8 5 जा 40, यानी आपको 14 5 जा क्या होता है 70 और 40 और 30
70। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपको इक्वल टू हो गया, यानी बराबर हो गया यहाँ पे। तो ये इसका प्रॉपर्टी जो है ये बताता है कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है तो उसमें ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। और फिर इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उसको देखते हैं। आपको जैसे एग्जाम क्वेश्चन में दे देता है आपको कभी कभी a इंटू जीरो इक्वल टू ए होता है। अब एग्जाम्पल इस पे देखते हैं आपको a इंटू जीरो। जब भी a को मान लीजिए आप 9 मान लीजिए और जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपको जीरो होता है। हमेशा आंसर a को मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो हमेशा इसका आंसर जीरो आता है। तो जैसे a को हम 9 मान लिए और जीरो को जीरो, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसमें फॉर्मेट आता है। फिर उसके बाद आपको एक और इसमें रूल्स पढ़ना रहता है, a को मल्टीपल 1 से जब करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है आपको a आता है, यानी जब भी a को 1 से मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा a आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, a को हम 7 मान लिए तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है किस चीज में, फिल इन द ब्लैंक्स in your exercise. When you solve the exercise, then more than question says that's a fill in the blanks या find out the क्वेश्चंस। ओके, तो ऐसे ऐसे आपको एग्जांपल्स उसमें मिलेंगे। ऐसे मल्टीप्लिकेशन का जो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज होता है ऐसे आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो टुडे इज आवर लास्ट टॉपिक, इट मींस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर। Okay, and next topic properties of multiplication, division, and next class. And that's a, if you have firstly you take your book and then solve the exercise. If you have problem then also comment and share what's your problem, or stay home and save your life. Okay, तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।